Hey students, today we will discuss about our new chapter, chapter number 5, Skewness of frequency distribution. In this video we will discuss about symmetric frequency distribution and meaning of skewness in this video. So continue watch this video. Students, today we will discuss about our new topic, new chapter, Skewness of frequency distribution. In this chapter we will discuss about the meaning of skewness, types of skewness, concept of absolute and relative measures of skewness, methods of obtaining measures of skewness and coefficient of skewness, Carl Pearson's method, Bowley's method. Fifth, comparison of two methods of coefficient of skewness in this chapter. So continue watch this video. This is Patel. Meaning of skewness. Meaning of skewness. Measures of central tendency and dispersion give important information about the population under their study. These measures give the information about the values assumed by the units of population. Moreover, a comparison of two or more populations and analysis to obtain other information is possible using these measures. We have studied the nature of population observations by these measures. The measure of central tendency and dispersion give us partial information, यानी कि half information provide करता है, partial information provide करता है of the central tendency and dispersion of the observation around the central tendency measures of raw data. But we cannot get its complete information. हमें complete information नहीं मिलती. Right? To get more information about this, the population is represented by frequency curve. इसके बारे में अगर डिटेल में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना पड़ेगा. Thus the direction, shape and the form of the frequency curve can be studied from the frequency curve of the frequency distribution. We will study the third important measure called skewness to obtain more information about the population. Let's understand the concept of symmetric frequency distribution before explaining the meaning of skewness. तो skewness सीखने से पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? तो सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखना पड़ेगा, राइट? उसके बाद हम जाएंगे स्क्यूनेस पे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? सिमेट्री है क्या? अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द पॉपुलेशन आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द बोर्ड इज कॉल्ड सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यानी हमारा जो डेटा है उसको एग्जैक्ट टू साइड्स के ऊपर डिवाइड करना है, दो पार्ट करने हैं फ्रीक्वेंसी कर्व के. उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व, जो बिल्कुल बीच में से दो पार्ट को डिवाइड करता है, जैसे कि बेल शेप. आपने बेल देखा होगा स्कूल का, तो जो बेल शेप है उसको एग्जैक्ट कैसे मिडल में से दो पार्ट करते हैं, एग्जैक्ट हमारी सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व भी ऐसा ही आएगा. फ्रीक्वेंसी कर्व सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड टू बी बेल शेप्ड. We shall study the concept of symmetric frequency by the frequency curve and measures of central tendency using the illustration of frequency distribution of daily wages in of workers. नीचे दिया है रुपीज़ के अंदर डेली वेजेस दिया है वर्कर का, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 400, ये वेजेस. नंबर ऑफ वर्कर्स है 1369631. अब हमें क्या करना है? तो इसके बेसिस के ऊपर एक डायग्राम ड्रॉ करना है, जो डायग्राम नीचे आप देख सकते हो. To ascertain whether the above frequency distribution is symmetric or not, we will draw the frequency curve to find the measures of central tendency. Scale: x-axis 1 cm equal to ₹100 and y-axis 1 cm equal to 1 worker. अब यहाँ पर आपको x-axis, y-axis ड्रॉ करना है और उसके बेसिस के ऊपर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. Now we are going to discuss about the diagram of symmetric frequency curve. x-axis, y-axis. वाई एक्सिस के ऊपर हमने नंबर ऑफ वर्कर्स लिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है? यस, डेली वेजेस वर्कर्स इन रुपीज़, राइट? अब आप देख सकते हो आपका फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है? 200, 400, 600, 800, राइट, 1200 एंड 1400. ओके, और आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा. तो ये है एग्जैक्ट मिडल मीम, इस तरफ है मोड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एक्स बार, Q1 एंड Q3. तो डेली वेजेस इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है. Thus, the frequency curve of the given distribution is bell shaped. The observation 800 has maximum frequency 9. The observation at equal distance on both sides of 800 rupees have the same frequencies. Hence, the observations on both sides of mode of the distribution are equally distributed. यानी यहाँ पर अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें 9, तो वो भी 800 है. बोथ साइड आप देख सकते हो 800, 800 सेम फ्रीक्वेंसीज है. तो इसका आप शेप भी देख सकते हो, बेल शेप है, यानी ये सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व है. नाउ वी विल कंप्यूट द मीन, मीडियन, मोड एंड क्वार्टाइल्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज देम टू अंडरस्टैंड द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसके बेसिस पर हम मीन, मीडियन एंड मोड कैलकुलेट करेंगे, क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए.
तो इस क्वेश्चन में डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑलरेडी दे दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स भी है। हमें क्या फाइंड करना है, तो एक्स बार, तो उसके लिए एफ एक्स चाहिए। तो एफ इंटू एक्स 200 मल्टीप्लाई बाई 1, राइट, ईजी हो सकता है। 400 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इस तरीके से एफ और एक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ करना है, यानी फ्रीक्वेंसी को प्लस करते जाओ, आ जाएगा 1, 4, 10, 19, 25, 20, 10, 29। अब फर्स्ट स्टेप, मीन एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 23,208 by 29 is equal to 800, so that x bar is equal to rupees 800. Median m is equal to value of the n plus 1 upon 2 observation, that means value of the 29 plus 1 upon 2 observations, then value of 30 upon 2 observation, that means 15, so that value of 15 observation आपको CF में देखना है 15 किस में कंटेन हो रहा है, किस में हो रहा है। तो referring to CF column we find that the value of the 15th observation is 800, तो आपका मीडियन भी क्या आएगा, यस 800, m इज इक्वल टू 800 रुपीज़। एंड द नेक्स्ट थिंग इज मोड, m इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन विथ, दैट मीन्स हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो 9 है, तो वहाँ पर भी 800 है, तो मोड इज इक्वल टू 800 रुपीज़। आपने एक बात नोटिस की होगी, मीन मीडियन मोड तीनों 800 800 800 यानी सेम है। अब फर्स्ट क्वार्टाइल की बात करें, वैल्यू ऑफ द 10 प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 29 प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 30 अपॉन 4। अब आपको कैलकुलेशन करना है, पॉइंट में आंसर आ सकता है। वैल्यू ऑफ द 7.5th ऑब्जर्वेशन 7.5, यानी यहाँ पर आपको CF का कॉलम देखना पड़ेगा, तो 7.5 कंटेन हो रहे हैं 600 के सामने, दैट मीन्स Q1 इज इक्वल टू 600, राइट। इसी तरह Q3 कैलकुलेट करना है, तो Q1 तो आपका आ गया ₹600। अब Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू एन प्लस 1 अपॉन ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 3 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, 3 इंटू 7.5, ऑलरेडी हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया 30 अपॉन 4 यानी 7.5 ऑब्जर्वेशन, तो 3 इंटू 7.5 ऑब्जर्वेशन, सो दैट वी कैन से दैट 7.5 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट मीन 22.5 आपका आंसर आएगा। 22.5 ऑब्जर्वेशन आपको CF में देखना है, और उसके सामने जो आंसर है, यस दैट इज 1000। तो रिफरिंग ऑफ CF कॉलम, फाइंड द वैल्यू ऑफ 22.5 ऑब्जर्वेशन इज 1000, वी कैन फाइंड दैट 1000 रुपीज़ एंड Q3 इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो आपका आ गया मीन मीडियन मोड 800 है, Q1 600 एंड थर्ड क्वार्टाइल Q3 1000 रुपीज़। It is clear from the values of mean, median, mode and quartiles from the distribution as well as the frequency curve of the distribution that first we have x bar is equal to median m is equal to mode is equal to 800 rupees. Second, Q3 minus m is equal to m minus Q1. 1000 minus 800 is equal to 800 minus 600, तो वहाँ पर भी 200 is equal to 200 आएगा, आप कर सकते हो कैलकुलेटर पे। Thus the quartiles are equidistant from median, यानी क्वार्टाइल्स मीडियन से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, इक्वी डिस्टेंस है, ओके। थर्ड, फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड टू बी बेल शेप, thus the following characteristics are generally observed in a symmetric frequency distribution, यानी नीचे जो दिए हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं। फर्स्ट, मीन मीडियन एंड मोड हैव सेम वैल्यू, आपने अभी ऊपर भी देखा 800 800 तीनों की वैल्यू सेम, सो दैट एक्स बार इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। Second, first quartile Q1 and third quartile Q3 are equal distance from median, मीडियन से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होता है क्या, तो Q1 एंड Q3, इसलिए हम कह सकते हैं Q3 माइनस एम इज इक्वल टू एम माइनस Q1। तो ये भी एक है, आप डायग्राम देख सकते हो Q1 और Q3 एग्जैक्ट डिस्टेंस है मीडियन मोड और एक्स बार से एग्जैक्ट मिडल में है, यू कैन सी इजीली। Third, the frequency curve of the frequency distribution is found to be bell-shaped. Fourth, the frequency of observation at equal distance on both sides of the mode is equally distributed. यानी कि बेल शेप आइकन होगा उसका जो डायग्राम है बेल शेप बनेगा, उसके साथ साथ जो डिस्टेंस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा दोनों साइड, बिल्कुल मिडल में से वो हाफ पार्ट इस तरफ हाफ पार्ट उस तरफ। If the above characteristics are absent in any given frequency distribution, then it is said to that frequency distribution is not symmetric. The frequency distribution with lack of symmetry is called skewed frequency distribution. Thus, the lack of symmetry is called skewness. यानी कि यहाँ पर डेफिनेशन दी है स्क्यूनेस की, जो आपको याद रखनी है,
द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ लैक ऑफ सिमेट्री, जिसपे सिमेट्री नहीं हो ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कह सकते हैं स्क्यूनेस। द फॉलोइंग सिचुएशंस इंडिकेट द स्क्यूनेस इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट, द वैल्यूज ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर नॉट सेम, यानी कि मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, लैक ऑफ सिमेट्री है वहाँ पर स्क्यूनेस के अंदर, राइट। उसको हम दूसरा वर्ड देंगे स्क्यूड फ्रीक्वेंसी के अंदर। क्वार्टाइल्स Q1 एंड Q3 आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मीडियन M इज इक्वल टू Q2, यानी कि मीडियन से इक्वल डिस्टेंस में नहीं रहेंगे Q1 एंड Q3, एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ सिमेट्री। दस Q3 माइनस M इज नॉट इक्वल टू M माइनस Q1। थर्ड, द राइट और लेफ्ट टेल ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व इज मोर एलोंगेटेड, लेफ्ट साइड वाली टेल या राइट साइड वाली टेल मोर एलोंगेटेड होगी, खींची हुई होगी, दोनों सेम नहीं होंगे, क्योंकि बेल आइकन बनेगा तो हम कहेंगे उसको सिमेट्रिकली, यहाँ पर सिमेट्री नहीं है, तो स्क्यूड है, ओके, स्क्यूनेस है, तो वहाँ पर सिमेट्री नहीं रहेगी। फोर्थ, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन एट इक्वल डिस्टेंस ऑन बोथ साइड ऑफ बोर्ड इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मोड जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, दोनों साइड पे अलग अलग होगा। द अबव कंडीशंस आर कॉल्ड टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस एज द चेक whether the frequency distribution is skewed or not. Now we will show the types of skewness. We will discuss about the types of skewness in our next video. यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम चेक करेंगे तो वो स्क्यूड होगी या नहीं होगी, राइट। तो टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस है वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। दिस इज नो पटेल, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। थैंक यू सो मच।